Welcome students, good evening. Yesterday we had completed topic 1 and today we will start with topic 2, that is making of nationalism in Europe. How did nationalism established or it was established in Europe? If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find there were no nation states as we know them today. As the world is today, as the countries are today, in the mid 18th century Europe map, you will not find countries like that. Nation states were not there in short. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms. These are now united things or united as a country, as was India. India, it was divided into more than 550 states. Now it is not, it is almost 30, about 30 states it is in total. So it is unified. That is what is known as nationalism. But Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons. Kingdoms were there, kings were there, duchies. Duchies means territories ruled by a duke or duchess of Holland, we can say. And then cantons. Cantons means a small territorial district. Districts were there, small districts were there which were ruled, whose rulers had their autonomous territories, and the rulers of these territories were having their autonomous things, means they used to dictate the things, they used to be despotic rulers of their territories. Whatever they told, that was done there. In short, a monarch or a king like things were there. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies. Eastern and Central Europe were under autocratic monarch. Autocratic, I have already told you, despotic or absolute ruler. He has all the powers of that territory. Within the territories of which lived diverse people, they were autocratic monarchs, but there was diversity in people, means different types of people of different culture, different religion, different language. Diversity was there of the population. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. And they did not see themselves as sharing a collective identity, means they all were different. They were not having commonness or equality or a common culture. They were all diversified or different from each other. So, unity, what we talk about unity when there is commonness or equality, there is unity among the population. A feeling of commonness as citizenship is there, but that was not there previously. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. Now, when there is diversity, they naturally there were different languages they spoke and belong to different ethnic group. What is ethnic? A group common in maybe language, culture, religion, etc. So there is some type of commonness regarding language, culture, or religion. That is ethnic group. It is coming from way back, or it is from time immemorial, we can say. The Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. The Habsburg Empire that ruled over Austria and Hungary, it was a patchwork, means there was a mixture of different religions and people, as told earlier. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. Now, these areas which are mentioned, they were predominantly, means majority of them were German speaking. It also included the Italian speaking provinces of, and they also contained, or they had in them, Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Hungary, half of the population, means majority we can say, spoke Magyar language, while other spoke, the rest of the population spoke variety of different languages or dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish.
In Galicia, the aristocracy means higher society people or higher standard people, the cream layer we can say of the population, they spoke Polish, means Poland, language of Poland. Besides this, three dominant groups there also lived within the boundaries of the empire. Now, besides these three dominant groups, there were others who lived in the boundaries of that empire. A mass of subject peasant people. A mass of subject means majority of the population, that is the mass of subject means the subject is who are ruled, they are known as the king and the subject means राजा और प्रजा जैसे हम बोलते हैं. तो सब्जेक्ट मीन्स जो प्रजा थी, मास मीन्स उसमें ज़्यादातर कौन थे, पीजेंट पीपल, फार्मर्स, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ साइड में ये सब थे, स्लोवेंस इन कार्नियोला, क्रोएट्स टू द साउथ एंड रोमान्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया. So these were the other people who lived there, that is they were the subjects. Such differences did not easily promote a sense of political unity. So much diversification is there and they did not feel like they are united politically. They were all different. There was no united state. There was no unity among the different people. So they all felt differently. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. Now the thing common was that there was an allegiance. Allegiance means, what is allegiance? I told you, they are responsible, we can say, to the king. एलिजेंस का मतलब होता है कि वो एक कॉमननेस एक ही थी कि वो किंग से जुड़े हुए थे, वहाँ के राजा के साथ जुड़े हुए थे, उसको रिस्पॉन्सिबल थे. हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट्स इमर्ज. तो फिर नेशनलिज्म की आइडिया और नेशन स्टेट की आइडिया जो कॉन्सेप्ट था वो बाहर कैसे आया, इमर्ज कैसे हुआ. नाउ देयर इज अ टेबल, डेट लाइन इज गिवन. यू कैन सी हियर some important dates, as history is related with dates and years and events. Some important dates: 1797 Napoleon invades Italy. Napoleonic wars begin. Napoleon starts invading, means attacking others. He attacks Italy and the Napoleonic wars begin. 1814 to 1815 fall of Napoleon. By 1814-15 fall of Napoleon, the Vienna peace settlement, and after the fall of Napoleon, after his rule is over, the Vienna peace settlement was there, pact was there, agreement was there in 1814 to 15. 1821 Greek struggle for independence begins. The Greeks started struggle for their independence. अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने शुरुआत की, स्ट्रगल, संघर्ष शुरू किया 1821 में. 1848 रिवॉल्यूशंस इन यूरोप, क्रांतियाँ जो है यूरोप के अंदर. फिर आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स. जो आर्टिसंस थे यानी कि जो कलाकृतियों के काम करते थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे जो उद्योगों में काम करते थे, कर्मचारी थे, कार्यकर थे, एंड पीजेंट्स और फार्मर्स थे. रिवोल्ट मीन्स उन्होंने क्रांति करी अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स, जो आर्थिक उनका स्ट्रगल है, आर्थिक परिस्थिति उनकी जो ख़राब है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई. मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस, और जो मिडिल क्लास पीपल है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस. वो बोलते हैं कि लॉज होने चाहिए गवर्नमेंट, एक कंट्री को गवर्न करने के लिए जैसे संविधान होना चाहिए, जैसा आज हमारे इंडिया में है, लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसा उन लोग की मांग थी. एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, और इलेक्शन होने चाहिए, लोग उनमें से लीडर बन के बाहर आने चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ऐसी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसी मांग थी उनकी. इटालियंस, जर्मन्स, मग्यार्स, पोल्स, चेज एट्सेट्रा डिमांड नेशन स्टेट्स. और ये जो सब नाम हैं, ये लोग सब अब नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि एक नेशनलिटी, एक कॉमननेस के लिए इनका संघर्ष शुरू होता है. देन 1859 to 1870 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि एक नेशन स्टेट बन गया. इटली जो अलग अलग था, बिखरा हुआ था, स्प्रेड आउट था, वो अब एक हुआ. 1859 to 1870 की बात है. 1866 to 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो यू कैन सी द ईयर्स आर कॉमन, लाइक mid 18th century we can say all this is happening.
तो 1866 से 1871 में जर्मनी एक हुआ, एक नेशन स्टेट बना, यूनिफिकेशन हुआ, उसका संघ हो गया एक। 1905 स्लाव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन हैब्सबर्ग एंड ओटोमान एम्पायर्स। तो ओटोमान टर्क्स थे और हैब्सबर्ग थे, वहाँ पर नेशनलिज्म ने जोर पकड़ा, ऐसा हम बोल सकते। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो याद रखनी है। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब मैंने तुमको बताया ही था कि जो अपर लेयर होती है, जिनका जो हुकूमत चलाते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, उसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोल देते हैं। तो वो एंड द न्यू मिडिल क्लास, और जो न्यू मिडिल क्लास, जो नया मिडिल क्लास बना, कौन सा नया मिडिल क्लास था वो अब अभी हम पढ़ेंगे। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent। तो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे सोशली, सामाजिक तौर पे, और पॉलिटिकल, राजकीय तौर पे अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मीन्स एक फिक्स एरिस्टोक्रेसी थी, और वो एक डोमिनेंट क्लास था, मीन्स उसका अपर हैंड हुआ करता था, वर्चस्व उनका रहता था। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। और इनके जो मेंबर्स थे, ये अपर क्लास के, डोमिनेंट क्लास के, उनके जो मेंबर्स हैं वो एक यूनाइटेड हैं, एक हैं बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। उनके जीवन के तौर तरीके कॉमन है, दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। और वो रीजनल जो डिविजन्स हैं उनसे परे थे, उनसे हट के थे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड। तो कॉमननेस क्या थी कि उनके बड़े बड़े लैंड्स होते थे, एस्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं। कंट्री साइड का मतलब है विलेजेस या रूरल एरियाज़ में। एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, और टाउन के अंदर उनके हाउसेज होते थे, बंगलोज होते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। और रुतबे के लिए वो लोग फ्रेंच का यूज़ करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का। डिप्लोमेसी मीन्स गवर्नमेंट में आगे जो हम लोग बोलते हैं, डिप्लोमेट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, रिलेशंस रखते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो डिप्लोमेट्स होते हैं। तो उसके लिए, उस पर्पस के लिए फ्रेंच भाषा का उपयोग होता था। एंड इन हाई सोसाइटी, और स्टैंडर्ड के लिए, जैसे हम आज इंग्लिश बोलते हैं तो एक हाई सोसाइटी या हाई स्टैंडर्ड बोलते हैं, वैसे फ्रेंच वहाँ पर था उस टाइम पे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और वो एक दूसरे के घरों में, मीन्स एक दूसरे के साथ, हम लोग बोलते हैं एक दूसरे के परिवार के साथ अटैच थे। मैरिजेस वो अपने आप में करते थे, डिप्लोमेट्स एक दूसरे के परिवार के साथ मैरिज करवाते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये पॉपुलेशन कितना था, लोग कितने थे, तो बोले हम स्मॉल ग्रुप, नंबर्स के हिसाब से ग्रुप तो छोटा था, पर उनका वर्चस्व बहुत था। दे हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अदर्स। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। और बाकी का जो पॉपुलेशन था उसमें खेतीबाड़ी करने वाले लोग थे, खेडूत हम लोग जिसको बोलते हैं, फार्मर्स। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स। और वेस्ट साइड जो है यूरोप का, वहाँ पे जो लैंड है, बल्क मीन्स ज़्यादातर जो लैंड है, वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। तो छोटे छोटे लैंड ओनर्स होते थे, वो खेतीबाड़ी करते थे, और दूसरे बड़े जो ओनर्स खेतीबाड़ी नहीं करते थे, वो उन्होंने टेनेंट्स रखे थे, भाड़े पे दी थी लैंड, वो लोग खेतीबाड़ी करते थे। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स। तो बड़ी बड़ी लैंड्स, जो बड़े बड़े एस्टेट्स थे, वो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में थे। बाय वास्ट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्ब्स। और इतनी बड़ी ज़मीन पे खेती करना मालिक के लिए तो मुमकिन नहीं है, लैंड ओनर्स के लिए, इसलिए वहाँ पे सर्व्स, यानी कि हमने कल देखा था स्लेव्स जो होते थे, वो उस ज़मीन पे खेतीबाड़ी करते थे। In western parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. Western and parts of Central Europe, यहाँ पर जो थे वहाँ पे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा इंडस्ट्रीज़ का, एंड ट्रेड,
और जो व्यापार की वृद्धि हुई उसका मतलब था इट मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। हम लोग देखते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिटीज़ के करेक्ट, जहाँ पर ग्रोथ होता है, ट्रेड होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वो सिटीज़ होती है। तो टाउन्स इमर्ज हुए, बड़े बड़े शहर बनने लगे। एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस और बिजनेस क्लासेस का वहाँ पे क्रिएशन हुआ, इमरजेंस हुआ, बाहर निकले। जैसे हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते थे, प्रोडक्शन का काम करते थे मार्केट के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। और इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ यानी कि 1850 से 1890 के बीच में शुरू हुआ। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन फ्रांस और जर्मन के पार्ट्स जो दूसरे स्टेट्स थे वहाँ पर ये 19वीं सदी में शुरू हुआ, यानी कि 50 साल के बाद ये सब शुरू हुआ। इन इट्स वेक, और जैसे ही ये स्प्रेड हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। तो एक समाज में एक नए ग्रुप का इमरजेंस हुआ, नया ग्रुप एक बन के बाहर आया। और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ने, काम करने वाले लोग, इंडस्ट्रीज़ में, ऑफिस में काम करने वाले लोग, ऐसा एक अलग क्लास बना समाज के अंदर। एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। और एक मिडिल क्लास ग्रुप बना जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, बिजनेसमैन होते थे और प्रोफेशनल यानी कि व्यवसाय करने वाले लोग होते थे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। और इन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे ये अभी छोटा था, क्योंकि काम अभी शुरू ही हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। टिल लेट 19th सेंचुरी इनका ग्रुप यानी कि नंबर बहुत छोटा था। इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। और it was among the educated यानी कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस यानी कि जो हाई फाई सोसाइटी थी उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती थी उनका एबॉलिशन मीन्स उनको अब हटाया जाएगा या ये बंद होगा, ये सब ऐसा आइडिया वो तो जो था वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग, लिबरल मिडिल क्लासेस जो स्वतंत्र मध्यम वर्गीय लोग थे, ये आइडियाज़ जो नेशनल यूनिटी थी इन लोगों में फैली, इन लोगों से ये स्प्रेड हुई। 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब लिबरल नेशनलिज्म यानी कि फ्री नेशनलिज्म का मतलब क्या है। आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म यानी कि फ्रीडम। तो आइडिया जो था नेशनल यूनिटी का राष्ट्रीय एकता के बारे में बात करते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में वर क्लोजली एलाइड मीन्स जुड़े हुए थे, अटैच थे। कौन से आइडियोलॉजी के साथ, कौन सा उनका विचार था, तो फ्रीडम का विचार था कि फ्रीडम चाहिए। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। तो ये लैटिन वर्ड है, मूल रूप से हम लोग बोल सकते हैं लैटिन रूट है इसके अंदर। तो लैटिन वर्ड है मीनिंग फ्री, जिसका मतलब है फ्री, स्वतंत्र। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब फ्रीडम का मतलब मिडिल क्लासेस के लिए क्या था कि स्वतंत्रता, फॉर द इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ और कायदे के समक्ष, कायदे के सामने सभी एक है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, जिसको हम इक्वालिटी बोलते हैं। पॉलिटिकली और अगर राजकारण के हिसाब से देखें, इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो राजकारण राजकीय तौर पे इसको अगर देखा जाए तो ये भार देता था, एम्फसाइज में स्ट्रेस करता है इस आइडिया पे कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए बाय कंसेंट, लोगों की उसमें अनुमति होनी चाहिए, लोगों का उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। मीन्स सरकार जो बननी चाहिए, गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो लोगों के हिसाब से होनी चाहिए, लोगों का उसमें एग्रीमेंट या कंसेंट होना चाहिए। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। अब अगर लिबरलिज्म आता है, फ्रीडम आता है, तो इसका मतलब अंत किसका होगा। तो पहले क्या चलता था, ऑटोक्रेसी, उसका एंड होगा। एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, और हमने जैसे कल बात करी थी क्लर्जीज होते थे फर्स्ट एस्टेट में, सेकेंड एस्टेट में दूसरे होते थे, तीसरे एस्टेट में पीजेंट्स होते थे।
तो क्लैरिकल प्रिविलेजेस होते, जो फैसिलिटीज़ होती थी चर्च के लोगों को, प्रीस्ट के लोगों को, वो सब ख़त्म किया जाएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो लोगों के द्वारा चुनी गई होगी, इलेक्टेड या सिलेक्शन होगा थ्रू पार्लियामेंट, और उसका एक पार्लियामेंट होगा। 19th century liberals also stressed the inviolability of प्राइवेट प्रॉपर्टी। और 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया, द इनवायलेबिलिटी, इनवायलेबिलिटी मीन्स प्रोहिबिटिंग वायलेशन, यानी कि इस चीज़ को रोकना है कि ये भंग नहीं होना चाहिए, ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब कायदे के समक्ष सब एक हैं, लॉ के सामने सभी एक हैं, तो ये नेसेसरली, डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इसका मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज मीन्स हम लोग जो बोलते हैं राइट टू वोट होना चाहिए 18 ईयर्स के बाद यूनिवर्सली, 18 साल के बाद वोटिंग राइट्स मिलती है, तो इसका मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ऐसा निकलता नहीं था। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, अब फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें पहली बार पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, तो लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि एक डेमोक्रेसी के लिए कदम उठाए गए, स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी, लोकशाही हम लोग जिसको बोलते हैं। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो 9th में तुमने पढ़ा था कि जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, मिलकत होती थी, एसेट्स होती थी, उनको ही राइट टू वोट होता था और वही इलेक्शन लड़ सकते थे। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, और ये सब हक है, पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट्स या लीडर बनने के राइट्स, वो जिनके पास संपत्ति नहीं होती थी, एसेट्स प्रॉपर्टी नहीं होती थी वो, और वीमेन, और सभी वीमेन जो भी स्त्रियां हैं उनको ये वोटिंग राइट्स, सफरेज के राइट्स होते नहीं थे। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स, तो जब जैकोबिन्स का रूल होता था तभी एक शॉर्ट टाइम के लिए डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज, तो सभी अडल्ट मेल्स चाहे उनके पास प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, पर जब जैकोबिन्स का रूल था तब उनको एंजॉय सफरेज मीन्स उनको ये वोटिंग के राइट्स मिले थे। हाउ एवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, लेकिन जब नेपोलियन का रूल आया, उसका शासन आया, तो वापस से वो लिमिटेड सफरेज मीन्स वोटिंग राइट्स थी वो लिमिटेड लोगों के पास चली गई। एंड रिड्यूस वीमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर, और वीमेन का हक वापस से छीन लिया गया वोटिंग का। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, और अथॉरिटी किसकी थी, तो फादर्स और हस्बैंड्स होते थे, वो वोटिंग राइट्स कर सकते, पर माइनर यानी कि जो वीमेन थी उसको माइनर गिना जाता था। फैमिली में फादर और हस्बैंड को मेजर और उनको माइनर गिना जाता था। Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. तो throughout the 19th and early 20th centuries, तो पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआत में वीमेन यानी कि स्त्रियां एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन, जिनके पास संपत्ति नहीं है, एसेट्स लेस हैं, वो लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ओपोजिशन मूवमेंट्स, और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, आंदोलन किया, मूवमेंट्स किए, डिमांडिंग, और उनकी मांग थी कि उनको भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स यानी कि समान पॉलिटिकल हक उनको मिलने चाहिए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अब अर्थतंत्र की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। तो मार्केट्स का फ्रीडम मीन्स स्वतंत्र व्यापार, कोई उसके अंदर बंदिश या कोई उसके अंदर कायदा कानून नहीं होना चाहिए, जैसा व्यापार करना है कोई उसके अंदर टैक्सेस वगैरह ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं, कोई भी लिमिटेशंस या मर्यादा होनी नहीं चाहिए, उसको फ्री मार्केट बोलते हैं। एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, एंड द एबॉलिशन मीन्स ये हटाए जाने चाहिए जो स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं, स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे, मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस है, कंट्रोल है जो गवर्नमेंट का, स्टेट का, वो हट जाना चाहिए। ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी कि माल एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली आना जाना चाहिए, और कैपिटल यानी कि पैसा लगाने के लिए भी फ्रीडम होना चाहिए, इसके लिए कोई कायदे कानून नहीं होने चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th century दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडल क्लासेस,
और हमने इमर्जिंग मिडिल क्लासेस देखे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ये सब थे जो मिडिल क्लास थे, इमर्जिंग मिडिल क्लास थे। उनकी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी 19th सेंचुरी के दरमियान कि ये सब चीज़ें यानी कि मार्केट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, वो मार्केट फ्री होना चाहिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ यानी कि 1901 टू 1950 तक की बात हम लोग करते हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, देखिए 19th सेंचुरी मीन्स 1801 से 1900 की बात करें हम लोग तो फर्स्ट हाफ यानी कि 1801 से 1850 की बात करें। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो नेपोलियन ने क्या करा था, जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनको एक कॉन्फेडरेशन बनाया। कॉन्फेडरेशन मीन्स एक यूनियन बनाया, हम लोग बोलते हैं एक अलायंस बनाया, एक एसोसिएशन बनाया 39 स्टेट्स का। ईच ऑफ दिस प्रोसेस इट्स ओन करेंसी, और ये जो 39 स्टेट्स थे उनकी खुद की करेंसी यानी कि चलन हम लोग बोलते हैं, मनी जो होता था वो, वेट्स एंड मेजर्स, और हर एक के अपने मेजर्स एंड वेट, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स होते थे। अब मर्चेंट ट्रैवलिंग, अब अलग अलग बातें जो बताई है कैसे वो व्यापार चलता था। मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। अब 11 चेक पोस्ट जैसे हम बोलते हैं कस्टम बैरियर्स, जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के में कस्टम लगता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश में। तो तब तो नेशन स्टेट्स ही थे, तो नेशन स्टेट्स नहीं थे, तो उस टाइम पे जब हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग जाना पड़ता था किसी व्यापारी को 1833 में, तो उसने बताया था कि 11 कस्टम बैरियर्स यानी कि चेक पोस्ट आते थे और हर जगह 5% उसको देना पड़ता था गुड्स का, यानी कि 11 फाइजा 55% तो वो टैक्सेस चुकाता था, ऐसा हम बोल सकते थे। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और गुड्स का वेट या मेजरमेंट के हिसाब से कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। ड्यूटीज़ का मतलब एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, और हर एक प्रदेश का अपना एक तरीका था वेट्स और मेजर्स का। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, एक समानता नहीं थी वेट्स और मेजर्स यानी कि तोल माप के लिए। तो ये जो इन्वॉल्व जो टाइम कैलकुलेशन होता था टैक्सेस कैलकुलेशन का, वो उसमें बहुत समय लग जाता था, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था एक। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जांपल, उसने एक एग्जांपल दिया कि क्लोथ का मेजरमेंट जैसे हम मीटर सेंटीमीटर्स और इसमें करते हैं, वॉज द एल विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अब एल का मतलब हर जगह पे अलग होता था। एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। तो फ्रैंकफर्ट में टेक्सटाइल मटेरियल अगर कपड़ा लिया गया तो उसका एल का मेजरमेंट है 54.7 सेंटीमीटर। माइंस में वो होता था 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरेमबर्ग में वो होता था 65.6 सेंटीमीटर। तो टैक्सेस कैसे लगाया जाए, किस तरीके से कैलकुलेशन करा जाए, क्योंकि सब जगह पे एल का मतलब अलग अलग होता था। इन फ्रेबर्ग 53.5 सेंटीमीटर। समझ में आया तुमको कि अलग अलग तरीके से मेजरमेंट्स या वेट्स होते थे, एक स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स नहीं होते थे। 1 रुपये का मतलब सपोज 100 पैसे सब जगह इंडिया में होगा, पर 1 रुपये का मतलब हर जगह पे अलग अलग होगा, तो कैलकुलेशन करने में 100% डिफ़िकल्टी होगी। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes। और ये जो अलग अलग तरीके के वेट्स और मेजर्स, एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, तो ऑब्स्टेकल था, यानी कि इकोनॉमिक एक्सचेंज यानी कि गुड्स जो एक्सचेंज होते थे, मनी एक्सचेंज होता था, या इकोनॉमिक्स को बढ़ाने में, इकोनॉमिक के प्रोग्रेस के लिए हिंड्रेंस था, ये ऑब्स्टेकल था, ये अवरोध रूप था उनके लिए, ऐसा न्यू कॉमर्शियल क्लासेस मानते हैं और ऐसा होता भी है। Who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो उन्होंने बोला एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, एक इकोनॉमिक टेरिटरी यूनिफाइड होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए जिससे सामान, लोग और जो मूड़ी हम लोग बोलते हैं या कैपिटल जो हम लोग बोलते हैं, धंधे में जो पैसा लगाए जाते हैं,
वो अच्छी तरह से एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के आ जा सके। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छा होता है, डेवलपमेंट अच्छा होता है, जो उस टाइम पॉसिबल नहीं था। इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन ऑफ जोल्वेरियन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो 1834 में ये सब देखते हुए कस्टम्स यूनियन बनाया गया, यानी कि एक यूनियन बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेरियन, वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव, प्रशिया ने इसका इनिशिएटिव लिया, शुरुआत करी, और उसके बाद जर्मन, मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स उसके अंदर ज्वाइन हुए। जोल्वेरियन का दिया है The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। तो जो 30 अलग अलग तरह की करेंसीज होती थी उसकी जगह सिर्फ 2 ही करेंसी चलती थी। तो ये एक अच्छी बात थी इकोनॉमिक्स के लिए। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और रेलवेज का एक नेटवर्क बना, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया और बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। तो जो कंडीशंस थे, तो हार्नेसिंग का मतलब है टू ब्रिंग अंडर कंडीशन फॉर इफ़ेक्टिव यूज़, यानी कि अच्छी तरह उसका यूज़ करने के लिए कंडीशंस को अच्छे बनाना। स्टिमुलेटेड मीन्स सॉलिड किया, मोबिलिटी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज हम लोग बोलते हैं, आना जाना। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जागा और इससे फ़ायदा हुआ, नेशनल यूनिफिकेशन, और राष्ट्र एक है या एकता की बात आई, संघ की बात आई, यूनियन की बात आई। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम। और ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म जागा और स्ट्रेंथन हुआ, यानी कि पावरफुल हुआ, उससे जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे, नेशनल फीलिंग्स थी, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ और उसको बढ़ावा दिया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। Absorbs me, the economists began to think in terms of the national economy. They talked of how the nation could develop and what economic measures could help force this nation together. तो जो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे, वो सोचने लगे कि एक राष्ट्र कैसे बनेगा, कौन से आर्थिक मेजरमेंट्स लिए जाए, स्टेप्स लिए जाए जिससे राष्ट्र एक हो, फोर्ज हो, यानी कि फोर्ज मीन्स सबको एक किया जाए किसी न किसी तरीके से। फ्रेडरिच लिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन इन जर्मनी, रोड इन 1834। तो फ्रेडरिच लिस्ट जो प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन में, जर्मनी में, उन्होंने 1834 में लिखा, द एम ऑफ जोल्वेरियन इज़ टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। तो ये जोल्वेरियन थे, उनका काम क्या है, बाइंड मीन्स उनको एक करना, जर्मन्स को इकोनॉमिकली एक नेशन में बांधना उनको। इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मटीरियली, और उससे बढ़ावा मिलेगा, नेशन एक होगा। मटेरियल मीन्स फिजिकली वो अच्छा ही होगी, अर्थतंत्र बढ़ेगा। एज मच बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एक्सटर्नली एज बाय स्टिमुलेटिंग इट्स इंटरनल प्रोडक्टिविटी। और इंटरनल प्रोडक्टिविटी बढ़ने से वो एक्सटर्नली भी ये स्ट्रॉन्ग होगा। इट ऑट टू अवेकन एंड रेज नेशनल सेंटिमेंट थ्रू फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट। और जो इकोनॉमिक्स में प्रोग्रेस होगा तो इसे ऑट टू अवेकन मीन्स नेसेसरी है, ये होगा ही होगा। अवेकन मीन्स जागरूक होगा, एंड रेज और बढ़ाएगा नेशनल सेंटीमेंट, एक राष्ट्र के लिए भावना या फीलिंग्स बढ़ेगी, थ्रू अ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट और लोगों के इंटरेस्ट ये जब मिलेंगे और अर्थतंत्र को बढ़ावा मिलेगा तो इससे सबको फ़ायदा ही होगा। द जर्मन पीपल हैव रियलाइज्ड दैट अ फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द ओनली मीन्स टू एनजेंडर नेशनल फीलिंग। और जर्मन लोग ये समझ ही चुके थे कि फ्री इकोनॉमिक सिस्टम जो है वही एक मीन्स है, एनजेंडर नेशनल फीलिंग, यानी कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा करना, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने के लिए यही एक तरीका है। डिस्कस दिया गया है क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 2.3, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है
कंजर्वेशन ज्योग्राफी में आता है, उसका मतलब बचत होती है, पर ये कंजर्वेटिज्म और पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी कि पॉलिटिकल थिंकिंग। तो जो गवर्नमेंट है वो या लोग जो गवर्नमेंट है वो ऐसा सोचते हैं दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेस। हम लोग देखते हैं कि चेंजेस फास्ट होते हैं, पर ये जो कंजर्वेटिव लोग थे वो ऐसा सोचते थे चेंजेस होने चाहिए पर एकदम स्पीडीली नहीं होने चाहिए। और स्ट्रेस यानी कि उन्होंने जोर दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो पहले से चलता आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, पहले के ज़माने से जो ट्रेडिशंस हैं कस्टम्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स, तो इंस्टीट्यूशन और कस्टम्स तो एस्टैब्लिश होने ही चाहिए। एंड प्रीफर्ड, और वो चाहते थे कि डेवलपमेंट हो वो क्विक नहीं होना चाहिए, मीन्स धीमी गति से चेंजेस होने चाहिए। साफ साफ शब्दों में ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थे उनके अंदर एक भावना फीलिंग हुई कि अब कंजर्वेटिज्म होना चाहिए। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल एरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। जो पहले से जो सब चलता आ रहा है वो एकदम उनमें नयापन नहीं आना चाहिए। चर्च है, सोशल एरार्की से जो सोसाइटी में पहले से सब चलता आ रहा है, प्रॉपर्टी के जो प्रॉब्लम्स थे वो फैमिली थी और मोनार्की थी, चर्च था, ये सब एकदम इनमें चेंजेस आने नहीं चाहिए। तो प्रिजर्व करना है उनको, टिका के रखना है। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। लेकिन ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो ऐसा नहीं मानते थे कि प्री रिवॉल्यूशनरी, जो क्रांति से पहले जो डेज थे सोसाइटी वैसी ही बन जाए, यानी कि एकदम पहले जैसी बन जाए, ऐसा उनका मानना नहीं था ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स का। रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हमने कल पढ़े थे, उनसे उनको लगता था दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। उनको ऐसा लगता था कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे एक्चुअल में वो बढ़ावा देता है या पावरफुल करता है हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो पहले से चलते आते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। तो मोनार्की को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा बल्कि उसको हटाएगा नहीं, ऐसा उनका मानना था। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, और सरकार के हाथ में जो पावर है उसको ज़्यादा इफेक्टिव, असरकारक एंड स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बनाएगा। अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो यूरोप में जो मोनार्कीज थी, किंग्स थे, जो उनका पावर था, उनका ऐसा मानना था कि एक मॉडर्न आर्मी यानी कि नए तरीके की सेना, आर्मी, मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, और असरकारक ब्यूरोक्रेसी का मतलब डिप्लोमेट्स होते हैं जो हायर सोसाइटी के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी हम लोग जिसको बोलते हैं। और डायनेमिक इकोनॉमी, और इकोनॉमी डायनेमिक मीन्स एक पावरफुल इकोनॉमी। द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो राज होता था, फ्यूडलिज्म का मतलब था कि सब इकट्ठा होते थे। फ्यूडलिज्म मिडल एजेस, जो मिडल एजेस चलती से गॉथिक एजेस थी, वो उसका एबोलिशन होना चाहिए। एंड सर्वडम, और हट जाना चाहिए, सर्वडम इन स्लेवरी, ये सब नहीं होने चाहिए। ये सब होगा तो कुड स्ट्रेंथन, ऐसे हो सकता है कि ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो यूरोप थी वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, और यूरोपियन पावर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव या उनके स्टेट्स थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, मेट एट वियना, वो लोग ये वियना में मिले टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, यूरोप के भविष्य के बारे में सोचने के लिए उन्होंने ड्रॉ मीन्स एक पैक्ट बनाया, एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, या हम लोग बोलते हैं एक चार्टर हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हुआ यूरोप के सेटलमेंट के लिए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। द कांग्रेस मीन्स ये जो मीटिंग है, कांग्रेस का मतलब यहाँ पर मीटिंग थी, होस्टेड, ये गेस्ट या किसने इसको इनविटेशन दिया था, तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच ने ये बुलाई थी मीटिंग।
द डेलीगेट्स ड्रू अप मीन्स उन्होंने एक बनाया डॉक्यूमेंट द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो ट्रीटी ऑफ वियना लिखी गई 1815 में with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the नेपोलियनिक वॉर्स। तो नेपोलियनिक वॉर्स यानी नेपोलियन के साथ जब युद्ध हुआ था उस समय जो चेंजेस हुए थे वो चेंजेस को अनडूइंग यानी कि वो हटाया जाए, नए तरीके का सिस्टम अपनाया जाए, ऐसा उनका मानना था। द बोबॉन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और बोबॉन वंश जो था डिपोज मीन्स उनको हटा दिया गया था उनके पद पे से, राज पे से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, वॉज रिस्टोर टू पावर, उसको वापस से उसका पावर मीन्स सत्ता में लाया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और नेपोलियन जब रूल करता था तो नेपोलियन ने जो जो टेरिटरीज अटैच करी थी फ्रांस के साथ वो टेरिटरीज वापस फ्रांस के हाथों में से चली गई। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future, और भविष्य में फ्रेंच अपनी टेरिटरीज एक्सपांड करने के लिए युद्ध न करे, दूसरों पे हमला न करे, इसीलिए अ सीरीज ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स सेटअप किए गए बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, फ्रांस की भूमि के बाउंड्रीज जो है उनका हम लोग बोलते हैं बाउंड्रीज के ऊपर, यानी कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया कि हद हद हम बोलते हैं, जो फ्रांस की हदें हैं वहाँ पर स्टेट्स इमर्ज कर दिए गए, स्टेट्स बना दिए गए, सीरीज बहुत सारे। दस द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। तो अब कैसे सेटअप हुआ सीरीज ऑफ स्टेट्स का फ्रांस के बॉर्डर्स पे? किंगडम ऑफ नेदरलैंड, नेदरलैंड्स का जो किंगडम था विच इंक्लूडेड, जिसमें बेल्जियम भी था, वॉज सेटअप इन द नॉर्थ, फ्रांस के नॉर्थ में उसको सेटअप किएगा। एंड जिनीवा was added to Piedmont in the south, और पिडमोंट के साथ जिनीवा को मिलाया गया साउथ में। प्रशिया was given important new territories on its western frontiers, प्रशिया को मजबूत किया गया, नई टेरिटरीज, नए रीजन्स उसके साथ जोड़ के वेस्ट में, वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे। वाइल ऑस्ट्रिया was given कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और नॉर्दर्न उत्तर इटली को ऑस्ट्रेलिया के साथ या उत्तर इटली का कंट्रोल ऑस्ट्रिया को दिया। इस तरीके से ये रीजन्स को बड़ा कर दिया गया जैसे फ्रांस आगे कोई नुकसान न कर सके। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, लेकिन जर्मन का जो एक यूनिफिकेशन हुआ था 39 स्टेट्स का एक हम लोग कॉन्फेडरेशन बना था, हैड दैट एट सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन ये जो जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था 39 स्टेट्स का, नेपोलियन ने जो बनाया था, लेफ्ट अनटच्ड, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, अब ईस्ट में रशिया को पोलैंड का कुछ भाग दिया गया। वाइल प्रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ सैक्सोनी, लेकिन प्रशिया को जबकि प्रशिया को सैक्सोनी का एक पार्ट दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर दैट द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। मेन इंटेंशन, तो मुख्य हेतु तो यही था कि जो मोनार्कीज, जो राजाशाही थी, जो नेपोलियन ने उखाड़ दी थी या उनको हटा दिया था, ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, उसको रिक्रिएट या रिस्टोर करना था। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में एक यानी कि बचाव के लिए, अपने प्रदेशों को बचाने के लिए, जैसे कोई आगे हमला न कर सके, फ्रांस की खास करके बात करें, ऐसा एक सेटअप यूरोप में हुआ। कंजर्वेटिव रेजिम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, लेकिन ये तो मोनार्की जैसा ही था, तो वापस से वो ऑटोक्रेटिक हो गए, जैसा वो बोलते थे वैसा होता था ये जो कंजर्वेटिव रेजिम्स बनाई गई। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, अब वो हुकूमत अपनी चलाते थे तो क्रिटिसिज्म, कोई उनके विरुद्ध बोलता था तो वो सहन नहीं कर सकते थे। एंड डिसेंट, कोई उनसे एग्री नहीं होता था, डिसेंट का मतलब किसी की बात से एग्री नहीं होना, तो उनको गुस्सा आ जाता था। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की लेजिटिमेसी का मतलब है उसका राइटफुलनेस, उसकी लीगलिटी, मीन्स उसके उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर जो सवाल खड़े करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ को, यानी कि उनके जो काम थे उनको वो कंट्रोल करते थे। जो लोग उनको क्वेश्चन करते थे कि तुम्हारा क्या हक है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को ऐसा कोई बोल सकता नहीं था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom।
तो ज़्यादा करके जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या ऑटोक्रेट्स थे, उन्होंने क्या किया, इम्पोज सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब एक कंट्रोल लगा दिया मीडिया के ऊपर, टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड। न्यूज़पेपर्स में क्या छापा जाता था, क्या कहा जाता था, बुक्स के अंदर क्या लिखा जाता है, नाटक प्लेस के अंदर क्या बोला जाता है, एंड सॉन्ग्स गाने कैसे बनाए जाते हैं, उनकी लिरिक्स, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, जिसमें लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज़ होते थे, उन सब के ऊपर कंट्रोल किया गया। अब यहाँ पे एक फिगर दी गई है, फिगर 6, द क्लब ऑफ थिंकर्स। ये ऑटोक्रेटिक्स हैं, ऑटोक्रेट्स हैं। एनोनिमस कैरिकेचर, एनोनिमस मीन्स किसने ये कैरिकेचर बनाया है उसका नाम मालूम नहीं है, उसको एनोनिमस बोलते हैं, इंग्लिश में भी ये वर्ड आता है। कैरिकेचर मीन्स एक कार्टून है, डेटिंग टू सी 1820 के कार्टून की बात कर रहे हैं। द प्लैक ऑन द लेफ्ट बेयर्स द इंस्क्रिप्शन। प्लैक हमने कल देखा ही था, एक मेटल प्लेट होती है जिसके ऊपर लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग। आज की मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस। हम लोग को थिंकिंग देने का हक कब तक होगा। द बोर्ड ऑन द राइट लिस्ट द रूल्स ऑफ द क्लब विच इंक्लूड द फॉलोइंग। और क्लब के रूल्स हैं, मीटिंग जो करे वो क्लब है उसके रूल्स हैं, और उसकी लिस्ट है उसके बाजू में राइट साइड पे। साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नेड सोसाइटी। तो एक लर्नेड सोसाइटी है, ये जो क्लब है, लर्नेड लोग हैं, वो साइलेंट रहने चाहिए, ये तो फर्स्ट कमांडमेंट है। तो पहला ऑर्डर है कि इन लोगों को कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है। कैसी बात है कि चेंजेस लाने हैं, यानी कि चुप रहो, बोलो मत कुछ भी, जो है उसको सहन करो। सेकेंड, टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब में कम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच, मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स अपॉन एंटरिंग। तो उनको चुप करा दिया जाएगा। इवेंचुअलिटी मीन्स आखिर में जो क्लब कुछ बोलना चाहता है, अगर वो कुछ विरोध करना चाहता है वो कर सकता नहीं है, इसीलिए इसको कैरिकेचर बोला है कि वो लोग अपने भले के लिए बैठे हैं पर कुछ कर सकते नहीं है। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और जो कैरिकेचर है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉन द लेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन जो फ्रांस में जो क्रांति हुई वो नॉन द लेस मीन्स उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद इंस्पायर लिबरल्स जो फ्रीडम के चाहक थे उनको इंस्पिरेशन मिलता रहा। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो एक इशू जो सबसे बड़ा इशू था जो लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा लिया गया, हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, और जो नया कंजर्वेटिव ऑर्डर का विरोध करते थे, वो चाहते थे कि प्रेस के ऊपर कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, प्रेस फ्री होनी चाहिए, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ प्रेस। द रिवॉल्यूशनरीज, यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनकी बात करते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, तो 1815 के बाद के जो साल है, उसके बाद की जो पीरियड है, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो सरकार कड़े कदम उठाएगी, रिप्रेशन मीन्स उनको उनके ऊपर सख्त कदम उठाए जाएंगे, इस डर से बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे जो फ्रीडम चाहते थे वो अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए, इसका मतलब हाइड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स, और सीक्रेटली सोसाइटीज़ बनी यूरोपियन स्टेट्स में टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना है, एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़, उनके विचारों को फैलाने के लिए ये गुप्त तरीके से सब किया जाता था। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस ने जो वापस से मोनार्की एस्टैब्लिश की थी, अगर कोई रिवॉल्यूशनरी काम करता है, कोई क्रांतिकारी काम, इसका मतलब है वो मोनार्कियल फॉर्म यानी कि राजा का या गवर्नमेंट का विरोध कर रहा है, तो उसके ऊपर सख्त कदम उठाए जाएंगे। उस डर से वो लोग छुपी तरीके से, गुप्त तरीके से काम करते थे, सीक्रेटली। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना भी मोनार्क के खिलाफ काम करना ऐसा माना जाता था। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनर्स ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और बहुत सारे जो रिवॉल्यूशन क्रांतिकारी थे उन्होंने सोचा कि नेशन स्टेट बनना चाहिए, यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, ये अलग अलग जो प्रदेश हैं उनको एक करना ज़रूरी है।
तो ये स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम जो है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि नेशन स्टेट बनाया जाए। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी गिस्सेपी मैजिनी। तो एक ऐसा क्रांतिकारी था इटालियन गिस्सेपी मैजिनी। बॉर्न इन जिनेवा इन 1807 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। एक सीक्रेट सोसाइटी, मैंने बोला गुप्त सोसाइटी थी, गुप्त समाज था जो इसके फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, फ्रीडम के लिए काम करता था, नेशन स्टेट के लिए, उसका वो मेंबर बना। एज अ यंग मैन ऑफ 24, 24 साल का युवक था। ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831, 1831 में उसको देश निकाला, एग्जाइल दिया गया फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया में उसने क्रांति फैलाने की कोशिश की तो उसको देश निकाला दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, और उसने सबसे उसके एज अ रिज़ल्ट हम लोग बोलते हैं उसने 2 दूसरी अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई। फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेल्स, मार्सेल्स में एक यंग इटली के नाम से रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई। एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, और बर्न में यंग यूरोप के नाम से। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। और इनके जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, वो लाइक माइंडेड मीन्स क्रांतिकारी विचार वाले लोग थे, पोलैंड में से, फ्रांस में से, इटली में से और जर्मन में से। माजिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। माजिनी ऐसा मानता था कि भगवान ने ये जो ज़मीन बनाई है ये सबके लिए है, ये एक नेचुरल चीज़ है जो लोगों के भलाई के लिए ये ज़मीन दी है, ना कि बंटवारे के लिए और रूल करने के लिए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो इटली कोई छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड होना नहीं चाहिए, बल्कि एक राष्ट्र के तरीके से उसको काम करना चाहिए। इट हैड टू बी फोर्स मीन्स उसको संघर्ष करके एक बनाना है, यूनाइट करना है उसको इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। दूसरे राष्ट्रों को, दूसरे प्रदेशों को जोड़ के इटली को एक बड़ा स्टेट, बड़ा राज्य बनाना है, बड़ी कंट्री बनाना है और यूनिटी वाली बनाना है। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और यही एक बेस है, ये एक फाउंडेशन है जो काम करेगा इटली की लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए। फॉलोइंग दिस मॉडल, और ये मॉडल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप। जो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में भी ये विचारधारा को जो इंस्पायर थे, वो लोग अपनी अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट के लिए काम करने लगे, नेशनलिज्म के लिए काम करने लगे। माजिनीस रिलेंटलेस ओपोजिशन, रिलेंटलेस मीन्स कंटिन्यूस हम लोग बोल सकते हैं, ओपोजिशन, उसने हार नहीं मानी और हमेशा वो अपोज करता रहा मोनार्की का विरोध करता रहा। एंड इज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, और डेमोक्रेटिक मीन्स लोकशाही होनी चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स, उससे जो कंजर्वेटिव्स थे वो डर गए। मैटरनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। मैटरनिच ने कहा कि ये हमारा जो सोशल ऑर्डर है, कंजर्वेटिव ऑर्डर है सोसाइटी का, उसका वो सबसे खतरनाक दुश्मन है, ऐसा उसके लिए कहा गया था। तो सेकंड पॉइंट 2.4 अभी हमने कंप्लीट किया। गिस्सेपी मैजिनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न। तो सीक्रेट सोसाइटीज़ एस्टेब्लिश हो रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। ये फ़ोटो तुम देख सकते हो, फिगर 7। So we will stop here. I hope you have understood, and we will continue with part 3 from tomorrow onwards. So have a nice day, take care and do the homework. Many are not doing, please read again and again, as it is a recorded lecture. There is benefit to see again and again and understand. Thank you, take care.